Hello students, this video is for class 8 crop production and management. Today's topic is irrigation, which is fourth practice of agriculture. Till now we have discussed first practice preparation of soil, second sowing, and third manuring. In that we discussed manure and fertilizer. And the fourth, which is very important practice, is irrigation. You can see in the picture a man is watering its plant with water. So let's see what is actually irrigation. This is what supply of water to the crops at regular intervals. I said regular intervals. That means after each 7 days, after each 8 days या after each 10 days. मतलब जो भी होना चाहिए वो रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, या तो हर 15 दिन के बाद या तो हर 5 दिन के बाद. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार 10 दिन पे पानी दे रहे हैं और फिर भूल जाएं, फिर आप बिल्कुल आ रहे हैं 25 दिन के बाद, या फिर आप डेली करिए. दिस इज व्हाट इरिगेशन. सप्लाई शुड बी एट रेगुलर इंटरवल्स and it has many importance also. Let's discuss one by one. Water is basic requirement for the survival. It is not for only crops or plant. It is for every living organism, including humans, animals also. Not only survival, even seeds cannot germinate without water. Now you can think how irrigation is important. Let's discuss one more importance. Plants contains nearly 90% of water. As we know, humans body contains a lot of water. Major part of humans body is water. In the similar way, plants also contains nearly 90% water. Now another importance of irrigation is nutrients dissolved in water are transported to each part of plant. As you know that food is produced in leaves of plant, but those food are required by each part of the plant, so that is need to be transported. लेकिन ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं होता है. अगर आप बस न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं कि वो लीफ से सभी जगह पे चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा. लेकिन जब वही न्यूट्रिएंट वाटर में घुल जाता है अच्छे से, तो वाटर के साथ आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है. मीन्स इट्स ईजी टू ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट इन वाटर. ओके, सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन. Now let's discuss how farmers irrigate their field. What are the sources are used by the farmer? So for that, wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams, canals, etc. These are the sources which are used in irrigation. One thing I want to tell you, there is certain changes. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पहले के इरिगेशन में और अब के इरिगेशन में. सो वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम. ट्रेडिशनल मेथड भी हम लोग डिस्कस करेंगे और मॉडर्न मेथड भी डिस्कस करेंगे. सो सम ट्रेडिशनल मेथड्स आर मोट, विच इज आल्सो नोन एज पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत. दीज मेथड्स आर operated with the help of human labor or animals, so they are very cheap but not very efficient. आपको थोड़ा सा लैंड को अगर इरिगेट करना है तो घंटों लग जाएंगे. बट लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो लेट्स बिगिन विथ मोट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज मोट. इसमें रस्सी से एक पुली लगी होती थी. पुली से पानी को इस वेल से बाहर निकाला जाता था, ऊपर लिफ्ट करते थे और फिर उसको फील्ड में फेंकते थे. नाउ यू कैन थिंक कितना टाइम लगेगा अगर आपको थोड़ा सा भी खेत को इरिगेट करना है. सो दिस इज व्हाट मोट. नाउ अनदर ट्रेडिशनल मेथड इज चेन पंप.
it is similar like moat only, but instead of rope, chain is being used, and it is driven with the help of ox, bulls. So it is also in the same way, उसी तरीके से है, पानी को वेल से बाहर निकालते हैं और फिर खेतों में डाल देते हैं. दिस इज ढेकली. मुझे अपने बचपन में ये सबसे ज़्यादा समझ में आया था, क्योंकि ये अभी कुछ साल पहले, मतलब अगर आप अपने मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे, शायद वो ढेका नाम से इसको जानते होंगे. ये इसको दबाया जाता था तो ये बकेट से पानी वेल से बाहर आता था, फिर उसके बाद इसको किसान अपने खेतों में डाल देते थे. एंड दिस इज लास्ट traditional method, which is rahat. It was driven by ox or bulls. It was little efficient than the other traditional method. बाकी सबसे थोड़ा अच्छा था. So we completed all 4 traditional methods. Now let's begin modern methods of irrigation. Modern methods of irrigations are sprinkler system and drip system. Both systems are economically very good. By seeing the situation, we have many motors which can be operated with the help of diesel, petrol, biogas, and they are more efficient than the traditional method. Now we will discuss them one by one. So let's begin with sprinkler system. This is very useful for uneven land. Very useful. It seems like raining. इससे जब हम लोग इरिगेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, और ये काफ़ी यूजफुल होता है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी के लिए, प्लांटेशन के लिए. लेट मी शो यू द फिगर ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम. सी दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम. ये यहाँ एक मोटर होता है, एंड दिस इज वॉट मेन पाइप, और ये पाइप होता है जो वेल से पानी को बाहर निकाल रहा है. ओके. और फिर इससे बहुत सारे सपोर्टिंग पाइप्स लगे होते हैं जो खेतों में जाते हैं, और जो ये टॉप पॉइंट होता है इस पर एक नोजल लगा होता है जो कि हमेशा चारों तरफ रोटेट करता रहता है. और जब इसमें से ये वाटर फ्लो होता है, देयर इज हाई प्रेशर, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जब पानी यहाँ से नोजल से बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल फव्वारे की तरह बाहर निकलता है. दैट्स वाई आई टोल्ड इट सीम्स लाइक रेनिंग इन क्रॉप. So this is what sprinkler system, which is first modern method. Now let's discuss drip system of irrigation. So in this system the water falls drop by drop near the roots. ड्रिप सिस्टम, आज नेम सजेस्ट ड्रिप. आपको पता होगा जब पेशेंट्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ड्रिप के थ्रू हम लोग उसके बॉडी में अंदर डालते हैं, है ना. ड्रिप के थ्रू इस तरीके का होता है, और बूंद बूंद करके इस तरीके का होता है, बूंद बूंद करके उसके बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें हम लोग कर देते हैं. ठीक है, ड्रिप सिस्टम. सो आज नेम सजेस्ट वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके नियर द रूट्स. अब आप सोचिए कि ये कितना अच्छा होगा कि डायरेक्ट रूट के पास ही बस पानी गिरेगा और कहीं इधर उधर नहीं. दैट्स वाई आई टोल्ड कि बोथ द स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम बोथ आर इकोनॉमिकली वेरी गुड, and it is best for plants, garden and trees. So this is a drip system. You can see it is like a sprinkler system only. लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, खेतों के ऊपर कोई पाइप ऐसी नहीं होती है जो नोजल से पानी को ऊपर निकाले. बस इसके जो पाइप्स होते हैं वो डायरेक्ट, जैसे ये एक प्लांट है तो इसके रूट के पास बिल्कुल ले जा करके वाटर गिराएगा. So this is what drip system. Now let's see homework. So you have to, first question, write a paragraph on irrigation. Okay. And second,
what are importance of irrigations, and last one, discuss the way of irrigation used in your area. मतलब आपके एरिया में इरिगेशन कैसे होता है, कब होता है, ठीक है. वन मोर थिंग यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं, इन विच सीजन इरिगेशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन शुड बी हायर. मतलब किसमें बार बार हमको पानी देने की ज़रूरत होती है. आई थिंक आंसर इज समर. ओके, you can do these homework. Thank you.